My dear students, welcome to Mathological. In this session, we're doing questions from 3D mensuration that have appeared in CAT examination. So first question, a solid right circular cone of height 27 cm is cut into two pieces along a plane parallel to its base at a height of 18 cm from the base. If the difference in volume of the two pieces is 225 cm cube, the volume of the original cone क्या होगा? So there is a cone of height 27 cm. And it is cut into two pieces along a plane parallel to the base at a height of 18 cm. So this is cut into two pieces. Total height is 27. And cut into two pieces along a plane parallel to base at a height of 18 cm. So this height is 18 cm and this one is 9 cm. So now after the cut there are two pieces. Okay? The top piece is a cone, smaller cone, and the bottom piece is a frustum. Okay. Okay? Or difference in the volume of the two pieces is 225 cm cube. Now if volume of the smaller cone is Vc, okay, and volume of the frustum is Vf, तो original cone का volume क्या होगा? Vc plus Vf, isn't it so? And volume of the smaller cone divided by volume of the original cone, which is Vc plus Vf, this will be equal to, रेशियो क्या होगा हमारा? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? हाइट का रेशियो आ रहा है स्मॉलर कोन का और ओरिजिनल कोन का 9/27, 9/27. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, दिस विल बी 1, दिस विल बी रेशियो ऑफ हाइट स्मॉल h by कैपिटल H होल क्यूब. बिकॉज सिमिलर कोन्स है, हाइट और रेडियस का रेशियो सेम ही है, तो स्मॉल h डिवाइड बाई कैपिटल H होल क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, स्मॉलर कोन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस फ्रस्टम यानी कि ओरिजिनल कोन, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल h कितना है 9, कैपिटल H इज 27, तो 9/27 होल क्यूब, विच विल बी 1/3 होल क्यूब यानी कि 1/27. सो टोटल वॉल्यूम इज 27 यूनिट्स और वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 1 यूनिट. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन Vc इज इक्वल 1 यूनिट्स. टोटल वॉल्यूम 27 है, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम विल बी 26 यूनिट्स, तभी टोटल 27 आएगा. और डिफरेंस इन द वॉल्यूम इज 225 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 यूनिट है और 26 यूनिट है, डिफरेंस कितना आएगा? 25 यूनिट्स का. और दिस 225 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 25 यूनिट्स यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब. 1 यूनिट इज 9 सेंटीमीटर क्यूब. तो टोटल वॉल्यूम which is volume of the original cone will be equal to 1 plus 26, 27 units, और 1 यूनिट है 9 सेंटीमीटर क्यूब, तो 27 into 9 cc यानी कि 243 सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल बी द आंसर, 243 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ठीक है. मैं अदरवाइज सिमिलरिटी से देखना है तो ऐसे भी देख सकते हो कि इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर, so if this radius is r of the smaller cone, then for the original cone the radius will be by the similarity of triangles, because छोटा वाला triangle and larger triangle, those are similar triangles. So if this is r, since height का रेशियो क्या है 9, 27, 1:3, तो रेडियस का रेशियो भी क्या होगा 1:3, यानी कि if this is r, this will be 3r. एंड अकॉर्डिंगली तुम वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हो, तो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1/27. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If the rectangular faces of a brick have their diagonals in the ratio 3:2√3:15, then ratio of the length of the shortest edge of the brick to that of the longest edge क्या होगा? Let us say edges of the brick are A, B and C. Length of edges of the brick are A, B and C. A, B and C. Okay. So if A, B and C are length of edges of the brick, if this is A, this is B, then diagonal, this diagonal will be square root of A square plus B square. Similarly, let us assume this is C. So this diagonal will be equal to, this one will be equal to, since this is A and this is C,
So this will be square root of a square plus c square. And this diagonal, this will be equal to square root of b square plus c square. Okay. So ratio of the diagonals क्या हो जाएगा? Square root of a square plus b square is to square root of b square plus c square is to square root of c square plus a square. And this is equal to 3 is to 2 root 3 is to root 15. Okay. Okay, so square कर देते हैं. So a square plus b square is to b square plus c square is to c square plus a square. This is equal to 9 is to 12 is to 15. ठीक है. So we can या तो सिंप्लीफाई कर लो, 3 is to 4 is to 5 हो जाएगा. ठीक है. This will be 3 is to 4 is to 5. So अगर a square plus b square is to b square plus c square is to c square plus a square, this is equal to 3 is to 4 is to 5. तो we can write that a square plus b square can be equal to, will be equal to 3 into some constant, 3k let us say, b square plus c square, this will be equal to 4k, and c square plus a square, this will be equal to 5k. Add these three equations. So 2 times a square plus b square plus c square आ जाएगा 7 plus 5 12k. तो a square plus b square plus c square आ जाएगा 6k. This is equal to 6k. Okay. And if this is 6k, so यहाँ से a square plus b square 3k, तो c square will be 3k. Similarly, a square will be 2k and b square will be k. क्वेश्चन पूछ रहा है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एज ऑफ द ब्रिक टू दैट ऑफ द लॉन्गेस्ट एज. तो शॉर्टेस्ट एज कौन सा आएगा? शॉर्टेस्ट एज है क्योंकि b स्क्वायर इज इक्वल टू k, सो b विल बी शॉर्टेस्ट एज, तो b विल बी इक्वल टू रूट k. c विल बी लॉन्गेस्ट एज, तो c स्क्वायर है 3k, तो c विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3k. तो रेशियो ऑफ b एंड c, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, विल बी इक्वल टू 1 is to root 3. ओके. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. b is to c is equal to 1 is to root 3. Is that clear? Okay. Next question. The base of a regular pyramid is a square and each of the other 4 sides is an equilateral triangle. Length of each side being 20 centimeter. The vertical height of the pyramid क्या होगा? Base is a square. And other sides are equilateral triangles. तो कुछ ऐसा शेप बनेगा. Okay. And all side lengths are 20. So all these will be 20. And we need to find out vertical height of the pyramid. So for that we need a right angle triangle. Okay, so this will be right angle triangle we will be focusing on. This is height and this is one of the hypotenuse. Okay, so focus on this one, and this is the intersection point of diagonals of the square. Okay, so इस triangle को थोड़ा सा zoom in करते हैं. This will be hypotenuse क्या आएगा? That will be 20 because that is one of the side lengths. Okay, और base will be half that of diagonal का length. तो diagonal कितना होगा? 20 20 side length है हमारी square की, तो diagonal will be 20 root 2. तो this is half that of diagonal length, so that will be 10 root 2. And this is a right angle triangle. So if height is h, so h square plus 10 root 2 whole squared, this is equal to 20 square. So h square plus 200 is equal to 400. So h square is also 200 and hence h will be equal to 10 root 2. So height becomes equal to 10 root 2. Option A is the answer. Clear? Okay, height will be 10 root 2. Next question.
A man makes complete use of 405 cc of iron, 783 cc of aluminium and 351 cc of copper to make a number of solid right circular cylinders of each type of metal. These cylinders have the same volume and each of these have radius equal to 3 centimeter. तो रेडियस तो सबका फिक्स्ड है 3 सेंटीमीटर और वॉल्यूम भी सेम है, यानी कि हाइट भी फिक्स्ड ही होगा, सेम ही होगा. इफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज टू बी केप्ट एट अ मिनिमम, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स शुड बी केप्ट एट अ मिनिमम. सो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स को अगर मिनिमम रखना है तो वॉल्यूम शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर शुड बी मैक्सिमम और कंप्लीट यूज करना है ऑफ 405 cc ऑफ आयरन, 783 cc ऑफ एल्यूमिनियम एंड 51 cc ऑफ कॉपर. और हमें बनाने हैं नंबर ऑफ राइट सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मेटल, यानी कि सबके सेपरेट सिलेंडर्स बनेंगे, सारे मेटल्स के सेपरेट सिलेंडर्स बनेंगे. और वॉल्यूम हमें मैक्सिमम रखना है तो वॉल्यूम शुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 वैल्यूज, तभी तो ये पॉसिबल है. यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर शुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 405, 783 एंड 351. तभी तो कम से कम सिलेंडर बनेंगे, मिनिमम सिलेंडर बनेंगे, क्योंकि मिक्स तो कर नहीं सकते, सबको सेपरेट रखना है. तो HCF ऑफ दीज वैल्यूज विल बी द वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर. HCF of 405, 783 and 351. तो क्या आएगा HCF हमारा? HCF of these 3 values. तो 405, 351 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 54 का और ऑड वैल्यूज है 27 विल बी द HCF. 270 प्लस 81, 351 बन रहा है, 405 बनेगा ही बनेगा, 73 यस, 27 विल बी द HCF. ठीक है, ऐसे हमारा आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 27 एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 27 और सिंस दिस आर सिलेंडर्स तो पाई आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम और आर इज गिवन एज 3 तो पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू एच. सो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए, एच विल बी 27/9 यानी कि 3 बाई पाई. दिस इज हाइट. ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दीज सिलेंडर्स. ऑप्शंस जिस तरह से हमें गिवन है, तो एक बार पहले हम एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर से. तो टोटल सरफेस एरिया वन सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2 pi r into h plus r. 2 pi r h for the curved surface area and pi r square 2 pi r square for the two bases. So 2 pi r into h plus r and r is equal to 3. So 2 pi into 3, h is 3 by pi plus r which is 3. So this becomes 2 pi 18 pi plus 18, this is 18 times pi plus 1 या 1 plus pi. और इतना भी देखने के बाद में तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि नाउ आंसर विल बी ओनली ऑप्शन डी. कुछ भी और आंसर हो नहीं सकता बिकॉज किसी भी और ऑप्शन में 1 प्लस पाई इज नॉट देयर. ठीक है, या तो पाई आ रहा है सीधे सीधे या फिर 4 प्लस पाई आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है और सेकंड और थर्ड भी पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन डी इज द ओनली पॉसिबल आंसर. अब इतने से भी काफ़ी है, तो एग्जाम में तो इतना ही कर दोगे, अदरवाइज हमें अगर और भी ऑप्शंस मैच कर रहे हो तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी निकालना था. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 27. नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने बनेंगे अपने? टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो वॉल्यूम है आयरन का 405, तो 405 by 27. दिस विल बी 15 प्लस एल्यूमिनियम के सिलेंडर 783 by 27. दिस इज 30 minus 1 29 प्लस 351 by 27 that is 13. So 42 plus 15 57. Number of cylinders are 57. So total surface area of all cylinders will be 57 into 18 into 1 plus pi. So 1140 minus 114 57 into 20 minus 57 into 2 1140 minus 114, so that will be 1026 into 1 plus pi. This is the final answer. Clear है? ठीक है. Okay. Next question. A right circular cone of height 12 feet stands on its base which has diameter 8 feet. The tip of the cone is cut off with a plane which is parallel to the base and 9 feet from the base. So with pi is equal to 22 by 7, the volume of the remaining part of the cone क्या होगा? Again a similar question. So we have a cone, height of the cone is 12 feet. Stands on its base which has diameter 8 feet. Diameter 8 feet है तो radius आ जाएगा 4 feet.
radius is 4 feet. Tip of the cone is cut off with a plane which is parallel to the base and 9 feet from the base. तो base से 9 feet के height पे है. So this is 9 feet. So 9 feet की height पे है, यानी कि remaining height कितना होगा? 3 feet होगा. And tip of the cone यानी कि top of the cone is cut off. तो बचा हुआ वॉल्यूम हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम. This volume we need to find out. Okay. Clear? Now focus on drop of perpendicular. So this is the radius and this will be radius for the smaller triangle. Smaller triangle. Similar triangles होंगे. ठीक है. तो हाइट का रेशियो क्या है? 3:12. 3:12 का रेशियो है हाइट का. ठीक है. तो स्मॉल h by capital H. This is 3/12 and this ratio will be same as ratio for small r by capital R. यानी कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द लार्जर कोन. लार्जर कोन का रेडियस है 4, सो स्मॉलर कोन का रेडियस हो जाएगा इक्वल टू 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 1. ओके, क्लियर है? सो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट या वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन या ओरिजिनल कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द कट कोन. ओरिजिनल कोन का हमारा हाइट है 12 और रेडियस है 4, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू 22/7, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच. 1/3 पाई को हमने कॉमन ले लिया. ठीक है. सो दिस विल बी 22/21 और कैपिटल आर कितना है हमारा? 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 1 इंटू स्मॉल एच इज 3. सो दिस इज 12 इंटू 16, 192 माइनस 3 189. तो 22/21 इंटू 189. 22 इंटू 9, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम विल बी 198 क्यूबिक फीट. क्यूबिक फीट. ओके, ठीक है. इजी कैलकुलेशन तो ऐसे भी कर लिया. अदरवाइज ये भी सोच सकते थे कि हमारा वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कट कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन. हाइट का रेशियो का क्यूब ऑफ हाइट का रेशियो, यानी कि स्मॉल h बाई कैपिटल h होल क्यूब, एंड दैट इज 1/4 होल क्यूब यानी 1/64. सो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा? 64 टोटल वॉल्यूम है. 1 यूनिट हमने कट ऑफ किया है, 63 वॉल्यूम हमारा बचा हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग फ्रस्टम विल बी 63/64 ऑफ द ओरिजिनल कोन. ओरिजिनल कोन हमारा वॉल्यूम क्या है? 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 12. ओके, 21 से कटा, यहाँ पे बचा कितना? 3 बचा. और फिर 16 से 4 टाइम्स बचेगा, 4 से 3 बचेगा और 3 इंटू 3 9 इंटू 12 22. दैट विल बी 198. सो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio 1:1, 8, 27, 27. The percentage by which the sum of the surface area of these 5 cubes exceeds the surface area of the original cube is nearest to what value? So surface area क्या आएगा? Total surface area of a cube is 6 times of side square. ठीक है. तो इनिशियली एक सॉलिड क्यूब था, उससे हमने 5 सॉलिड क्यूब्स बनाए और उनके वॉल्यूम का रेशियो गिवन है. तो वॉल्यूम के रेशियो से टोटल वॉल्यूम का रेशियो भी निकाल सकते हैं. ठीक है. तो हमारा क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, क्यूब 4, क्यूब 5 का रेशियो आ रहा है 1:1, 8, 27, 27. तो फाइनल जो ओरिजिनल क्यूब था उसका रेशियो क्या आएगा? उसका वॉल्यूम क्या आएगा? दैट विल बी 27 + 27 यानी 54 + 8, 62 + 2, 64. ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम आएगा 64. ठीक है. तो वॉल्यूम का रेशियो आ गया हमारा. क्या से साइड का रेशियो निकाल सकते हो? साइड का रेशियो क्या होगा? साइड विल बी क्यूब ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. तो 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा. 1 1, 8 का क्यूब होगा 2, 27 का क्यूब विल बी 3 एंड 64 का क्यूब विल बी 4. तो साइड का रेशियो आएगा 1 1, 2, 3 3 एंड 4. बट हमें चाहिए क्या? सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए. सरफेस एरिया का, और सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज सारे केसेस में बाकी तो 6 है, 6 ही है, 6 तो कांस्टेंट है. तो रेशियो तो हमारा a स्क्वायर ही होगा ना, यानी साइड स्क्वायर ही होगा. तो 1:1, दिस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. So 1:1, 4, 9, 9, 16. So 16 was the total surface area, 16 units
was the total surface area for original क्यूब का। और अब जो बने हुए क्यूब है हमारे, इनका सरफेस एरिया कितना आने वाला है टोटल? 9 + 9 18 + 4 22 + 2 24, यानी 24 इज द न्यू सरफेस एरिया, 24 यूनिट्स, ओरिजिनल सरफेस एरिया 16 यूनिट्स। तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा? 3:2 का। ओरिजिनल था 2, अब हो गया है 3, तो 1 यूनिट का इंक्रीज आया है। और बेस कितना है? 2, 1 यूनिट का इंक्रीज आया है 2 यूनिट्स पे, यानी कि 50% का इंक्रीज आया है, 50% इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of diameter 4 cm is kept on top of a hollow cylinder standing vertically. The height of the cylinder is 3 cm while its volume is 9 pi centimeter cube. Then the vertical distance in centimeter of the topmost portion of the ball from the base of the cylinder क्या होगा? So there is a cylinder. And over that cylinder there is a ball as well, spherical ball. Okay, height of the cylinder is 3 cm, volume of the cylinder is 9 pi. तो volume of the cylinder is pi r square h, और हाइट हमें गिवन है, तो पाई r square into 3, दिस इज 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r square is equal to 3. So radius of cylinder, this is equal to √3 centimeter. And the ball has the diameter 4 centimeter, यानी कि radius of the ball, spherical ball, this is equal to 2 centimeter. तो बॉल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, while radius of the cylinder is √3 centimeter. Okay, so जब हमने बॉल को रखा होगा सिलेंडर के ऊपर, so this is the radius of the ball which is 2 centimeter, and this here is the radius of cylinder which is √3. So this is √3, and if we connect this point with the center of the sphere, so this will be 2 centimeter because ये तो रेडियस किसका है? सिलेंडर का है, isn't it so? So from this we will get this value. ठीक है, the distance of this point where the sphere is touching the cylinder, ठीक है, वो डिस्टेंस हमें सेंटर से मिल जाएगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द टॉप कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द sphere or the ball, that is 2 centimeter. So this is 2 centimeter, or this is a right angle triangle. Focus on this one, this part. Okay, focus on this part. Isn't it so? So basically this height here, this is 2 centimeter, और ये हाइट हमें निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में, और फिर नीचे हाइट क्या है हमारा? दिस हाइट बिलो विल बी हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो टोटल हाइट हमें पता चल जाएगा ऑफ द टॉप फ्रॉम द बॉटम. ओके, क्लियर? सो इन दिस ट्रायंगल this is 2 centimeter radius of the ball, this is √3 centimeter radius of cylinder, and this height will be, since this is a right angle triangle, तो क्या आ जाएगा? This will be square root of 2 square minus √3 square, यानी कि 2 square minus 3, this is equal to square root of 1, which is equal to 1 centimeter. This height is 1 centimeter. तो हमें क्वेश्चन पूछा टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द बॉल का हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर, सो दिस टोटल हाइट फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट. ओके, सो दिस इज 2, this is 1, and this is 3, this is 3. टोटल हाइट हमारा आ जाएगा, टोटल हाइट will be equal to 2 + 1 + 3, which is equal to 6 centimeter. This answer will be 6 centimeter. Is that part clear? ठीक है, okay. Total height will be 6 centimeter. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
द बेस ऑफ अ vertical pillar with uniform cross section is a trapezium whose parallel sides are of the length 10 cm and 20 cm while the other two sides are equal in length, यानी कि isosceles trapezium है. ठीक है, दो साइड्स का लेंथ हमें गिवन है 10 और 20 एंड द अदर टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि isosceles trapezium है. The perpendicular distance between the parallel sides of the trapezium is 12 cm. If the height of the pillar is 20 cm, then total area in square centimeter of all six surfaces of the pillar क्या होगा? ओके तो पहले बेस का एरिया निकाल लेते हैं और बेस की डायमेंशन निकाल के फिर बाकी टोटल एरिया भी निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी तो उसके बाद में हाइट ही बचता है जो कि गिवन है 20 सेंटीमीटर. ओके तो बेस हमारा एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. लेट अस ड्रॉ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. So this height is 10 centimeter. These two sides are parallel. This height is 20 centimeter. Now let us drop the perpendicular. Because these perpendiculars are the height of the trapezium. तो इनका लेंथ भी हमें गिवन है which is equal to 12. This is 12. और 20 और 10 में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है. और क्योंकि this is isosceles trapezium, so this will be equal to this side. This base will be equal to this one, this part. Isn't it so? So these will be 5 and 5 because ये distance तो 10 होगा. This will be 10. So this will be 5 and this will also be 5 because isosceles trapezium है तो these two sides are equal. और हाइट तो सेम ही है. ठीक है, तो बेस भी हमारा इक्वल ही होगा, तभी तो हाइपोटेन्यूज सेम आएगा. तो 12 एंड 5 डेफिनेटली दिस विल बी 13. पाइथागोरन ट्रिपलेट है 12 5 13. तो ऐसे में सारी डायमेंशंस ऑफ द ट्रेपेजियम पता चल गया. क्वेश्चन हमसे डायमेंशंस नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा टोटल एरिया ऑफ ऑल द 6 सर्फेसेस ऑफ द पिलर. तो पिलर का शेप कैसा होगा हमारा? बेस है एक ट्रेपेजियम. बेस ऑफ द पिलर इज अ ट्रेपेजियम और फिर इसी को एक्सटेंड किया है till 20 feet height. ठीक है, तो ये हमारा टोटल 20 फीट हाइट है. टॉप भी एक ट्रेपेजियम ही होगा. थोड़ा सा गड़बड़ बन गया बट समझ जाना. ठीक है, टॉप भी एक ट्रेपेजियम में होगा. सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये तो चार सरफेसेस का एरिया आ जाएगा. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम कितना आएगा? दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 13 multiplied by height which is 20 plus 2 times area of trapezium. Area of trapezium will be 1 by 2 into sum of parallel sides which will be 10 plus 20 multiplied by height which is 12. So this is 30 plus 26, 56 into 20, 1120 plus this value is 2 into 1 by 2, 2 से 2 cancel out हो गया, 30 into 12, 360. So total is 1480 square centimeter. Total surface area of one pillar will be 1480 square centimeter. Okay. So answer will be option C. Okay. Clear है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, दिस द लास्ट क्वेश्चन. तो आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया इस सेशन में क्लियर हुआ होगा. कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. यू कैन आल्सो कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT and ask your doubts or queries whatever they are. You can also join the Telegram channel Mathological और WhatsApp channel that is also Mathological. ठीक है, चलो अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू शेयर द सेशन विद अदर्स एज वेल. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब टू इट. इतना ही रखते हैं इस सेशन में और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.